Good morning, students. I'm Professor Sumit Kumar, Associate Professor in the Department of Information Technology, which is NBA accredited program. I'll be teaching artificial intelligence for engineering, and the code is KMC 101 for this course. First of all, I would like to welcome you all in the series of online lecture. Okay. Uh, First, before artificial intelligence, we will discuss about emerging technologies for engineering. Emerging technologies means latest technologies or those technical innovations which represent progressive development within a field. There are only three emerging technologies: data science, Internet of Things, and artificial intelligence. एक एक करके हम इसकी जो डेफिनेशन है इसका एक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि अगर डेटा साइंस, आईओटी और एआई की बात करें तो ये बहुत ही अपने आप में मतलब ह्यूज देर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस, देर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, देर आर नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स एप्लीकेशंस। तो एक ही लेक्चर में इसको समझना ये थोड़ा सा मुश्किल है। बेसिकली this lecture is just an introductory lecture to define emerging technologies. Okay, so first is data science. When we talk about data, data is everywhere. जब आप व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, शेयर मार्केट, शायद कोई ऐसा फील्ड बचा होगा जहां पर डिजिटल जो डेटा है वो जनरेट नहीं होता हो। अब इस डिजिटल डेटा को किस तरह से उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली डेटा साइंस इज अ प्रोसेस to convert the raw data into a information, that is the data science. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप देखिए कि एक मिनट में एक सिंगल सेकंड में 1.7 मेगाबाइट इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। ठीक है, इट इज सेड बाय फोर्ब्स। उसने कहा था कि 2020 तक हर सेकंड में प्लेनेट पर 1.7 मेगाबाइट डेटा जनरेट होगा। अब ये जो डेटा है ये जो डेटा है, तो पहले क्या होता था, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा था। उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस जो उसमें लैंग्वेज यूज करते थे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसके थ्रू उसको मैनेज किया जाता था। लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, तो उसके पीछे क्या है, डेटा साइंस। अब डेटा साइंस क्या है, इट इज डीलिंग विद अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। Basically, data science is a field that comprises everything that related to data cleaning or data cleansing, preparation and analysis. Data cleaning means it is a process to detect incorrect data, irrelevant data, and correcting that data through the modification, through the preparation, and then analysis. Okay, that is the data science. And data science is the combination of statistics, mathematics, programming, problem solving, capturing data in ingenious ways, the ability to look at things differently, and the activity of cleansing, preparing, and aligning the data. This is the other way to define the data science. लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था, इट इज रिलेटेड विद डेटा क्लीनिंग, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस। जो भी उसमें इनकरेक्ट डेटा है, जो इनएक्यूरेट डेटा है, जो इररिलेवेंट डेटा है, उसको डिटेक्ट करना, उसको क्लीन करना, उसको रिमूव करना, और फिर उसको मॉडिफाई करना। और ये जो डेटा है, उसको जो टेबल है, जो डेटाबेस है, जो डेटा सेट है, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज द डेटा साइंस. Basically, in simple term, if we define this data science, it is the umbrella of techniques used when trying to extract insights and information from data. देखिए,
ये जो दो लाइन है मीन्स इट इज द अम्ब्रेला ऑफ टेक्निक्स. रियली देर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स टू extract the information from the data. Means give the information from the raw data. That is the data science. Now we will discuss about application of data science. First, there are two. We are discussing only two applications: internet search and digital advertisement. Okay, so internet search. Everyone's using the search engine to search the data, to search anything in the Google search engine. तो होता क्या है, जब भी हम कोई भी वर्ड मेंशन करते हैं गूगल पर, तो देखिए अगर हमने एक वर्ड डाला तो उस वर्ड को वो इतने जहां इतना ट्रिलियंस ऑफ डेटा वहां पर है डेटाबेस में और उस सर्वर पर, वहां से उस पर्टिकुलर वर्ड और उससे रिलेटेड डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाना. ठीक है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस. और उसमें भी उससे रिलेटेड, अगर आपने उससे रिलेटेड प्रीवियस में कभी सर्च किया है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, उससे रिलेटेड वो आपको कहीं ना कहीं पॉपअप करेगा. वो आपको बताएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं. तो इसके पीछे क्या, इसके पीछे भी देखिए एआई इज अ हायर डोमेन ऑफ डेटा साइंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो देखिए एआई तो सब जगह काम करेगा. ये जो डेटा वहां से लिया और डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया, दैट इज द बेस्ड ऑन डेटा साइंस. ओके, दैट इज द बेस्ड ऑन डेटा साइंस. लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे चलाना, इसके पीछे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये हम डिस्कस करेंगे जब एआई के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो सब नेक्स्ट इज डिजिटल एडवर्टाइजमेंट. अभी जो मैंने बताया कि आपने कुछ सर्च किया और उससे रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपके फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम या जो भी आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो वहां पर वो डिस्प्ले होंगे. The entire digital marketing spectrum uses the data science algorithm. There are a number of data science algorithms through which it display banners to digital billboards. This is the main reason for digital ads getting higher CTR. तो जो भी एड चल रहे हैं तो आप क्या है, जितने व्यूज होंगे दैट इज द क्लिक थ्रू रेट. आप क्लिक या तो क्लोज भी कर रहे हैं, दैट इज अ क्लिक थ्रू रेट than traditional advertisement. So this is a general concept of data science. So next emerging technology is the IoT, Internet of Things. Internet of Things, it is a network of things through which these devices or these things communicate to each other and collect the data and or receive the data and send to other devices using artificial intelligence or other techniques. Okay, so first of all we will discuss about what is IoT. The Internet of Things. Things is nothing but a physical object, or it may be a program, it may be a electronics, it may be जैसे मैंने अभी बताया था, it may be a program means software. Software is a collection of programs, sensors, network connectivity, which enables these objects to collect and exchange data. Right? मैंने क्या बताया था? It is a network of devices, or it is a network of software, sensors. Through the network connectivity, it enables these objects to collect and exchange data, through which these devices or these objects or these things communicate to each other, sharing the data between the devices. This is the Internet of Things. So अभी हम जैसे IoT की हम बात करेंगे तो IoT allows objects to be sensed and controlled remotely across existing network infrastructure, or creating opportunity for more direct integration between the physical world and computer-based system, and the resulting in improved efficiency, accuracy, and economic benefits.
इसका मैं बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दूंगा। जब भी हम स्मार्ट की बात करते हैं, चाहे मैं स्मार्टफोन की बात करता हूँ या स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मास्क, और जहां भी स्मार्ट वर्ड होगा मींस देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट? आपने मतलब एड देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन जी मतलब बैठे हुए ऑफिस से अपने घर का एसी उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जहां भी हम स्मार्ट कार की बात करते हैं, स्मार्टफोन की बात करते हैं, these are all the behind a concept that is IoT। और मैं इसके साथ साथ आपके साथ कुछ और एग्जांपल भी शेयर करूंगा जो लेटेस्ट अभी मैं जापान की बात करता हूं तो जापान में अभी 15 सितंबर को स्मार्ट मास्क लॉन्च होगा, जिसमें क्या होगा कि वो जो स्मार्ट मास्क है, प्रॉब्लम ये थी कि हमें बार बार फोन उठाना है, बार बार मैसेज पढ़ने हैं, बार बार कॉल का रिप्लाई करना है, तो उसमें उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक स्मार्ट मास्क एक ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होगा, एक एप्लीकेशन होगा, और जो भी मैसेजेस आएंगे उनको 15 लैंग्वेजेस में इन विच यू आर कंफर्टेबल, तो उसमें आप उसमें रीड करके आपको बताएगा, ठीक है? या कोई कॉल आएगी तो उस कॉल को रिवर्ट उसको रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आईओटी। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इज अ हायर डोमेन, ठीक है, जिसमें हम आईओटी आईओटी में भी हम एआई यूज करेंगे, डेटा साइंस में भी। विदाउट एआई यू कैन नॉट थिंक टू क्रिएट स्मार्ट डिवाइसेस, राइट? तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, अभी अभी और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। लाइक मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, ठीक है, या मार्केटिंग या म्यूजिक, शायद कोई फील्ड ऐसा बचा हो जहाँ पर हम उसको स्मार्ट नहीं बना बना रहे हों, ठीक है? तो एक जो मेरा कहना है वो ये है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, देखिए इसमें मैं बात करता हूँ कि हार्ट मॉनिटरिंग इम्प्लांट्स, बायोचिप ट्रांसपोंडेंसर्स ऑन फार्म, electric clamps in coastal waters, automobile with built-in sensors, DNA analysis devices for environmental, food, pathogen monitoring, or field operation devices that assist firefighters in search and rescue operations. These devices collect useful data with the help of various existing technologies and then autonomously flow the data between other devices. मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जो फार्म है तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको पानी देना है, तो लेकिन उससे पहले अगर वहाँ पर सेंसर्स हैं तो सेंसर्स आपको ये बताएंगे कि उस जमीन में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना पानी देना है, ठीक है, और ये सब बताएगा। लेकिन अगर मैं इसमें इंटेलिजेंस अप्लाई करता हूँ तो इंटेलिजेंस वहां पर ये बताएगा कि अभी वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू कि अगर बारिश होने वाली है, अगर फार्मर ने पानी दिया तो क्रॉप खराब होगी या फिर उस डैमेज होगी, जो भी उसके रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आर्टिफिशियल उसको ये बताएगा कि नहीं, आपको सिर्फ इतना पानी देना है, ठीक है, कम देना है या ज्यादा देना है, इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। या मैं अभी आपको बता देता हूँ कि और भी बहुत शायद ही कोई फील्ड ऐसा बचा हो कि जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं करते हो, चाहे वो रोबोट्स हो, चाहे मेडिकल साइंस है, या फिर ऑपरेशन है, या फिर मॉनिटरिंग, लाइक मॉनिटरिंग ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो ये these are every field in which we use the devices, softwares, and through the IoT it is developed and and uh, and responds through the data which is collected by the sensors. Okay, so नेक्स्ट द ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव साइबर फिजिकल सिस्टम, जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि आगे कुछ और एप्लीकेशंस आएंगे जिसके थ्रू मैं उनको और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ईच डिवाइसेस कैन बी ट्रैक्ड एंड मॉनिटर्ड ओवर इंटरनेट
every smart devices can be tracked and monitored over internet. चाहे मैं स्मार्ट कार की बात करता हूँ या स्मार्टफोन, every smart devices can be tracked over internet. Smart homes, smart cities, smart grid, intelligent transport system, IoT based healthcare, social network, a teleoperated robotic system. So see शायद कोई फील्ड ऐसा बचा हो जहाँ पर हम IoT और इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं. सो देर इज एक डेटा है, इकोनॉमी ऑफ 2.7 ट्रिलियन डॉलर to 6.2 ट्रिलियन डॉलर एनुअली बाय 2025. देखिए ये ये जो डेटा है वो ये बताता है कि जो आज के टाइम में जो ऑल ओवर वर्ल्ड 2.7 ट्रिलियन है वो 2025 तक 6.2 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा. इट इज बेस्ड ऑन आईओटी. ठीक है, मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ आईओटी. ठीक है, अभी का जो देखिए अगर हम चलते हैं 2003 से और 2020 की बात करते हैं, देखिए इसमें 3 पैरामीटर्स हैं: वर्ल्ड पॉपुलेशन, कनेक्टेड डिवाइसेस एंड कनेक्टेड डिवाइसेस पर पर्सन. अगर हम 2003 की बात करते हैं तो 6.3 बिलियन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की. उसमें जो कनेक्टेड डिवाइसेस थी टोटल इंटरनेट से वो थी 500 मिलियंस, और पर पर्सन सिर्फ 0.08 स्मार्ट डिवाइसेस जो डिवाइसेस थी वो सिर्फ 0.08 per person. When we move into 2010, there is a population of world is 6.8 billion and connected devices 12.5 billions. Then per person devices are connected 1.8, means हर एक बंदे से एक डिवाइस कनेक्ट हो चुकी थी. ठीक है, नेक्स्ट फिर जब हम 2015 की बात करते हैं तो 2015 में देयर इज अ पॉपुलेशन ग्राफ इज 7.2 बिलियन एंड 25 बिलियंस कनेक्टेड डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट एंड 3.4, मतलब 2015 में पर पर्सन 3.47 डिवाइसेस कनेक्ट हो गई थी. लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, और जब हम कोरोना पैंडेमिक की बात करते हैं तो उसमें तो डिवाइसेस मुझे लग रहा है कि 6.58 को भी क्रॉस कर गई होंगी. ठीक है, ये लेटेस्ट नहीं है, ये मतलब 2019 का डेटा है जो प्रेडिक्टेड था. तो 7.6 बिलियंस पॉपुलेशंस एंड कनेक्टेड डिवाइसेस आर 50 बिलियंस, और आज के टाइम में 6.58 पर पर्सन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. Okay, so there is a proverb: changes is the only thing permanent in this world. So see the changes. Through this smart devices and AI or emerging technologies. Okay. Next is there are some few applications of IoT: building and home automation, manufacturing, medical and healthcare system, media, environmental monitoring, infrastructure management, energy management, transportation, better quality of life for elderly. You just name it and you will have it in IoT. So शायद कोई फील्ड ऐसा बचता होगा कि जहाँ पर IoT इतना डेवलपमेंट. ये देखिए ये जो तीनों ब्रांचेस हैं जो हम IoT, डेटा साइंस और AI की बात करते हैं, दीज आर इंटर रिलेटेड ब्रांचेस, दीज आर इंटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. ओके, तो ये सारे फील्ड्स इनडायरेक्टली AI और डेटा साइंस से भी जुड़े हुए हैं. ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं जितने भी सेंसर्स हम यूज कर रहे हैं IoT में, तो उनसे हम क्या है मतलब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. जो डेटा कलेक्ट होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ एल्गोरिथम्स. बेसिकली देयर आर टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड एंड इंटेलिजेंस मीन्स thinking power. So it is a man-made thinking power. Man-made thinking power. Okay. So intelligence is what? Intelligence is the capacity to learn and solve problems, right?
And the artificial intelligence is just an emerging branch in computer science which interprets the means and methods of making computers think like human being. जो AI है, AI एक emerging branch है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें मेथड्स और कुछ जो मीन्स हैं, वो सब क्या है, वो मिलकर के मेथड्स के थ्रू जो कंप्यूटर थिंग्स क्रिएट होगी, दैट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग. बेसिकली इट इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन to solve problems, to act rationally, and to act like humans. Okay. Next is the current status of AI. देखिए, AI के बहुत सारे एप्लीकेशंस मैं अभी अब डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जैसे एनालिसिस सैटेलाइट इमेजेस टू आइडेंटिफाई विच एरियाज हैव द हाईएस्ट पॉवर्टी लेवल. यहाँ पर क्या डीप लर्निंग काम करेगी. डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग भी एक एआई का पार्ट है. ठीक है, ठीक है. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, दीज आर द सबसेट ऑफ एआई. तो क्या होगा कि पॉवर्टी एरिया सैटेलाइट के थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया एरियाज को, उसके बेस पर एक हायरिटी पॉवर्टी लेवल निकाला जाता है. या फिर मैं गेट एलोकेशन फॉर प्लेन वाइल लैंडिंग, या फिर टिकट प्राइस डिटर्मिनेशन. ठीक है. और ये आज का स्टेटस है, ये करंट स्टेटस ऑफ एआई है. Companies are creating robots to teach subjects. There are many of companies are working on the robots who will teach the subjects like a classroom teaching. So healthcare, heavy industry, finance. In healthcare, solving a variety of problems of patients, hospitals, and healthcare industry overall. Or today's this corona pandemic time, it is a huge amount of solving problems through the AI are generating through the various algorithms, various softwares, and various devices, like using avatars in place of patients. Okay. And heavy industry robots have become very common in many industry, can do repetitive laborious tasks. Okay. Next is finance, algorithm trading, share marketing, and market analysis, data mining, personal finance, portfolio management. सबके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस इज अ मैन मेड थिंकिंग पावर. ठीक है. बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम बात करते हैं एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और एक हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. तो एक जनरल टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एलेक्सा, सीरी, प्लेइंग चेस. आप क्या करते हैं इसमें कि सिंपल आप गेम खेल रहे हैं, तो उसमें एक आप यूजर है और दूसरा जो यूजर होगा वो कंप्यूटर होगा. और जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स विच इज डेवलप्ड विद द टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उससे जीतना बड़ा मुश्किल है कि आपने मूव किया, ठीक है, उसका मूवमेंट भी आपके मूव के अकॉर्डिंग होगा और बहुत मुश्किल होगा उसको हराना. तो मींस बहुत सारी प्रिडिक्शन, बहुत सारी एल्गोरिथम्स उसके पीछे काम करती हैं. ठीक है. और मैं सीरी की बात करता हूँ. एप्पल फोन में जो हम सीरी यूज करते हैं, तो जस्ट आप प्रेस द सीरी बटन एंड कॉल टू एनीवन एंड सेंड अ मैसेज टू एनीवन एंड प्ले द सॉन्ग एंड एंड any application you call. And if you want to play a song through a YouTube, just say Siri, play this song with YouTube. तो ये क्या है, इसके पीछे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ठीक है. ऐसे ही हम एलेक्सा की बात करते हैं. एलेक्सा एक डिवाइस है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है. और क्या होता था पहले स्टार्टिंग में,
इसके साथ एलेक्सा के साथ क्या हुआ कि जब उसको एलेक्सा को हम रूरल एरिया में लेकर के गए तो वहाँ बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेजेस है, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में, इंटरप्रेट करने में, डेटाबेस के साथ में मैच कराने में, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन आज के टाइम में उसको भी रिजॉल्व कर लिया गया है और आप लोकल में लेकर जाइए, एलेक्सा वर्क्स वेरी वेल, ठीक है। लेकिन जब मैं एलेक्सा से ये कहता हूँ कि एलेक्सा प्लीज गिव मी द स्टेटस अबाउट द ट्रैफिक इन गाजियाबाद, तो वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जो डिवाइसेस हैं या ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये पर्टिकुलर एक टास्क के लिए बने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार में आप बैठिए, आपको जस्ट आपको डेस्टिनेशन डालनी है, और वो जो शॉर्टेस्ट वे होगा, पाथ होगा, वो कितनी स्पीड से जाना है, किस ट्रैफिक से गुजरना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ टर्न लेना है, कहाँ गाड़ी को पार्क करना है, सब कुछ उस गाड़ी में मतलब ऑटोमेटिकली होगा। दैट इज दिस कार इज डेवलप्ड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय टेस्ला कंपनी, ओके। गूगल भी क्रिएट कर रहा है एक कार, ठीक है। तो इट इज इन द प्रोसेस, एंड so there are so many example to describe the artificial intelligence। एक और मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। डेली लाइफ में जब आपके पास ईमेल आती हैं, तो बहुत सारी ईमेल आपने देखा है इनबॉक्स में आती हैं, और कुछ मेल आपके स्पैम में चली जाती हैं, ठीक है। तो क्या है कि मतलब वहां पर फिल्टरिंग हो रही है, और फिल्टरिंग कोई ऑटोमेटिक नहीं है, फिल्टरिंग एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है, जो आपकी जो मेल्स हैं उनको फिल्टर करता है, ठीक है। तो फिल्टर करने के बाद में उसको क्या करेगा, वहां पर जो स्पैम मेल्स होती हैं उनको वहां पर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और जो आपसे रिलेटेड, और ये सब एनालिसिस है, जब भी आप मेल आ रहे हैं, मेल को आप रीड कर रहे हैं, या फिर स्पैम से आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पीछे एक एनालिसिस काम कर रहा है आर्टिफिशियल का। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। देखिए, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, देयर आर आर्टिफिशियल एजेंट्स विद प्लेटफॉर्म्स, जैसे मैंने बताया था एप्पल का सीरी या आई मैसेजेस, ठीक है। गूगल का ये गूगल है, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, एलेक्सा, आसूस लैपटॉप में जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसमें हम कोर्टाना यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस थ्रू विच स्लैक, अभी हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथन में स्लैक यूज किया था। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस through which we connect with artificial intelligence, okay। Next, applications of AI, there are number of applications: competition and prices, automotive, healthcare, finance, economics, video game। देखिए, ये कुछ मतलब मुझे लगता नहीं कि जो भी एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं वही जनरली डेटा साइंस के हैं, और वही हम आईओटी में यूज करें, क्योंकि ये तीनों टेक्नोलॉजीज these three technologies are interrelated with each other, okay। So now it's a brief introduction of emerging technologies, data science, artificial intelligence, and internet of things। मैं अभी इसको मैं एंड करूंगा यहाँ पर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका इंट्रोडक्शन, अभी तक हमने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया, अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसका उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, उनकी